ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ। ਅਜੀਬੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਮਧੁਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੂਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੋ ਕੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੋ ਕੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਨੰਨਾ, ਨੀਲ ਕੰਠ ਨਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨੀਲ ਕੰਠ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਨੰਨੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਨ ਆਹਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਪਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਧੋ ਮਹਾਜੋਤ, ਮਹਾਜੋਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਮਹਾਜੋਤ ਮਦ ਮਰਦਨ ਮਾਨ ਮੁਕੰਦ ਮੁਰਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਬਿਕਾਰ ਨਿਰਜੁਰ ਨਿੰਦਰਾਵਿਨ ਨਿਰਬਿਕ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੀ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕਾਲ ਤ੍ਰੈਦਰਸੀ ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਸਨਕਾਰੀ। ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਰੁਪਾਨ ਧ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਧਰਾਧਰ ਅਨਬੇਕਾਰ ਅਸਧਾਰੀ। ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨਾਗਤ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਓ ਉਭਾਰੀ। ਟੈਗੋਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਇਨਾਮ, ਇਤਨੇ ਰੂਪ, ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ, ਇਤਨੀ ਉਡਾਰੀ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਜੋ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆਏ, ਈਰਾਨੀ ਆਏ, ਅਰਬੀਅਨ ਆਏ, ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਡਚ ਆਏ, ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਆਏ, ਫਰੈਂਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ एक साल ਲਈ गुलाम हो जाए वो 100 साल पछड़ जाता है, और ਜਿਹੜਾ देश 100 साल वास्ते गुलाम हो जाए वो हमेशा ਲਈ पछड़ जाता है। ये देश 1000 साल गुलाम रहा है। दूजी गल वो ये कहता है, ਜਿਹੜਾ देश एक दिन ਲਈ गुलाम होया है, सुता पिया सी, जागया है, आजाद हो गया है। ਜਿਹੜਾ देश 1 साल ਲਈ गुलाम होया है, बीमार सी, तंदुरुस्त होया है, आजाद हो गया है। पर ਜਿਹੜਾ देश 100 साल गुलाम होया है, ये तो मुर्दा सी, मर चुकिया सी, ये तो कबर दे विच जा चुकिया सी। कबर दे विच पए होया इन्हां मुर्दियां दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जान पाई, अपना खून दे के, अपने बच्चियां दा खून दे के, अपने श्वास दे के, अपने प्राण दे के, और उसका ही सदका है कि देश की संस्कृति बच गई, देश का धर्म बच गया। आप दियां उसारी ते तामीरी रुचियां जो आप दी काव्य शैली दे राहीं प्रगट होंदियां रहियां, उन्होंने नवीं फूक मनुखता दे अंदर भर दी, नवा जीवन प्रदान किया। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते हैं, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पै करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी जे मूर्ति ना होंदी तो देश की संस्कृति, देश का धर्म, देश दियां पुरानियां परंपरावां फिर सुरजीत नहीं हो सकदियां सन। मरण दे किनारे सन, मर चुकियां सन। इस सुरजीत कीतियां धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। उन्हां दे अपने बोल, उन्हां दा अपना एक शब्द, उन्हां दी अपनी मंग, अपनी चाहत, तर्जे जिंदगी बाहर प्रगट होंदी है। बड़ा सोहना वाक है मेरे पातशाह दा, जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। हे प्रभु, मैं तेरे कोल धन दी इच्छा नहीं करदा। क्यों? बिना इच्छा तो धन 10 दिशावां तो मेरे कदमां दे चल के अपने आप आ रहे हैं। मैं क्यों कामना करा, मैं क्यों इच्छा करा। जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक, या ललचावे। योगी जपीश्वर तपीश्वर तप कर देने, रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, हत्थां च बरकत आवे, करामात मिले। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, किसी सिद्धि की लोड़ नहीं, किसी रिद्धि की लोड़ नहीं। मेरे मन विच रिद्धियां सिद्धियां दा कोई लालच नहीं, इहदी मैनू कोई लोड़ नहीं। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक हिया ललचावे। और सुनो कछ जोग बिखे, कर कौन इतो तप के तन तावे। तूने तपाने जल धारा करनी, प्राणायाम दी साधना करके उम्र नू लंबा करना, ये मेरे जीवन दी चाहत नहीं है। बहुत छोटी जी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जीवी है, कुल 42 साल संघर्ष रहा है। उस वक्त दे हकूमत दे मुखी औरंगजेब नाल जिंदा रहा है वो 92 साल। जिंदगी रही गुरु गोबिंद सिंह दी 42 साल। हैरानगी, जब कोई हैरान होकर ऐसा पूछता है तो मैं कहना, फुल दी जिंदगी बहुत थोड़ी होंदी है, बहुत थोड़ी होंदी है। कंडे दी जिंदगी बहुत लंबी होंदी है, बहुत लंबी होंदी है। कंडा खिड़िया ही नहीं कि मुरझाएगा कि, फुल खिड़िया है और जो खिड़दा है मुरझांदा है। जिथे जिंदगी है उत्थे ही खतरा है, जिथे जिंदगी ही नहीं पहले ही कबर च पिया है उन्होंने की खतरा है। जलदे हुए दीपक नूं खतरा है, बुझे हुए दीपक नूं की खतरा है, खिड़े हुए फुल नूं खतरा है, कंडिया नूं की खतरा है। 42 साल जीवे ने पर फुल दी तरह जीवे ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭਣ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਵਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਲਧਾਰਾ ਧੋਣੇ ਤਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਕਛ ਜੋਗ ਬਿਖੇ ਕਰ ਕੌਣ ਇਤੋ ਤਪ ਕੇ ਤਨ ਤਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਇੱਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ, ਤੋ ਚਲਿਓ ਧਨ ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਤੇ ਆਵੇ। ਔ ਸਭ ਰਿद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक हिया ललचावे। और सुनो, कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। जूझ मरो रण में तज भय तुम ते बस श्याम ऐह बर पावे। हे प्रभु, यही बर दे, मजलूम दी खातर, देश दी खातर, धर्म दी खातर मैं मैदान दे जंग दे जूझदा लड़ मरा, अपने प्राणों की आहुति दे दियां। और कोई इच्छा नहीं, और कोई इच्छा नहीं। मैं मरना चाहना देश तो, मैं मिटना चाहना मजलूम तो, मैं फिदा होना चाहना देश दियां परंपरावां तो। इस तरह का देश भगत, इस तरह का समाज सुधारक, इस तरह का धार्मिक अवतार रूहे जमीन दे पहली दफा होया है, जो अपने हर तल ते संपूर्ण है, मुकम्मल है, हर दिशा विच मुकम्मल है। देखिया गया बड़े बड़े दानी होए ने, वो सूरवीर नहीं सन, सूरवीर सन ते भगत नहीं सन, भगत सन ते वो योधे नहीं सन। लेकिन एक शख्सियत ऐसी आलमे वजूद दे चाहिए, वो भगत भी है, वो योद्धा भी है, वो दानी भी है। वो भगत ऐसा है, हर वक्त प्रभु नूं अपनी याद विच रखता है। तलवारां दे टकराहट दी आवाज़ उन्होंने वाहिगुरू वाहिगुरू दी धुन सुनाई देंदी है। बरखा दियां बूंदां उन्होंने परमात्मा दी रहमत दिखाई देंदी है। वगदे होए दरिया उसनूं ज्ञान दा बहाव दिखाई देंदे ने। चढ़िया होया सूरज उन्होंने रब्बी नूर दिखाई देंदा है। हे रव, हे सस, हे करुणानिध, मेरी अभय बेनती सुन लीजिए। हे प्रभु, तू रवि है, हे प्रभु तू ससी है, तू ते चंद्रमा है, तू ते सूरज है, तू ते दरिया है, तू ते खिड़िया होया फुल है। ऐसियां ऐसियां तशबीहां दित्तियां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आपनू हर रूप दे परमात्मा की उतरती हुई बख्शिश दिखाई दे रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस भाव नू, इन्हां तीन रुचियां नू, ओ योद्धा ने, ओ दानी ने, ओ भगत ने अपनी बाणी विच थां थां ते प्रगट करते हैं, ताकि देश योद्धा बन सके, देश भगत बन सके, देश दानी बन सके। शोम ना बने, दानी बने, कठोर ना बने, नास्तिक ना बने, भगत बने, कायर ना बने, सूरवीर बने, योद्धा बने। और ऐसा योद्धा कि लखां दा भी घेरा पै जाए ते आख देवे, भावें लखां नूं मैं जित नहीं सकदा, पर लखां नाल मैं लड़ ते सकदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, तलवार चुकना, ये लड़ना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है।
बड़े कीमती बोल। और उन्हां दी इस शायरी नूं जफरनामा कहंदे ने और ये सारी पर्शियन दे च है। ये पहले अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी रचना संस्कृत दे च है, अरबी दे च है, पर्शियन दे च है, ब्रिज दे च है, पंजाबी दे च है। और हर रचना आसमानां नूं पाड़ के बुलंदियां नूं छूंदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ कह रहे ने, बलाचारगी द्रम्या आमदम बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। लाचार होके मैं तलवार चुकी है, खुशी नाल नहीं, खेड़े नाल नहीं। मैं देखे है और मैं ऐसा समझदा, चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त। हाथ जोड़ के अगर जालम दे कदम रुकदे नहीं, हीले तरले विचार नाल धारा नाल अगर जालम अपने पैरां नूं नहीं रोकदा और अपने पैरां दे थले मजलूमां दे सिर कुचलदा है, रुकदा ही नहीं, तलवार चुकना मैं अपना धर्म समझदा। चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सिफत और सलाह एक मुस्लिम कवि अला यार खां बड़े बुलंद पाया बोल सतगुरु बारे कहंदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। अगर दुनिया दे चिंतक विचारक दार्शनिक लेखक इंसाफ की दृष्टि नाल गुरु गोबिंद सिंह नूं देखन ते उस नतीजे ते पहुंचणगे कि हे परिपूर्ण परमात्मा, गुरु गोबिंद सिंह की सिरजना करके तू अपनी करामात नूं अपनी कला नूं इंतहा ते पहुंचाया है। लाला दौलत राय ने एक किताब लिखी है उर्दू दे सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह ये आर्या समाज के उगे प्रचारक सन। दीबाचे दे भूमिका दे चो कहंदे ने, ईश्वर दी सारी रहमत खत्म होई जिथे बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दी सारी सियाणप जिथे खत्म होई बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दी सारी कोमलता जिथे कठी होई बने गुरु गोबिंद सिंह। और ईश्वर दी सारी कारीगरी जिथे खत्म होई बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दा साहस दलेरी सूरबीरता जिथे कठी होई उसे तो ही बने गुरु गोबिंद सिंह। लाला दौलत राय कहंदे ने, हे प्रभु, ये तेरी कारीगरी दा कमाल है कि गुरु गोबिंद सिंह जैसा मुजस्मा तू रचे है, सिरजना की थी है, जो हर पहलू दे मुकम्मल है, जो हर पहलू दे पूर्ण है। कहंदे ने घेरे है अज कुछ एहलकारां ने जो उस वक्त दे शहनशाह नाल गूढ़े संबंध रखते सन, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भी शरदा रखते सन। हाथ जोड़ के एक कहंदे ने, महाराज थोड़ी सुलह करा दईए, क्यों? किले मसमार हो गए, पिता शहीद हो गए, 4 बच्चे भी थोड़े शहीद हो गए, सिंह भी थोड़े सारे मारे गए। हुण थोड़े कोल शस्त्र भी नहीं, हुण थोड़े कोल बस्तर भी नहीं, हुण थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा भी नहीं, हुण थोड़े जेब दे धन भी नहीं रहा, हुण तुसीं कल्ले रह गए, तनहा रह गए। ये असीं तुहानूं देख रहे हैं। ऐसी हालत दे साडी शरधा है वक्त दे हुक्मरान नाल थोड़ी सुलह करा दईए। साहिब कहंदे ने, सुलह दे जीवना साडा धर्म है, सुलह दे जीवना साडी जिंदगी है, सुलह कुन तबीयत साडा फर्ज है, साडा स्वभाव है। फिर महाराज असी सुलह करा देने आ, एक शर्त है कि तुसी हार मान लो, असी सुलह करा देने आ।
साहब कहते ने ये नहीं हो सकता, हार तो हो गई है। महाराज कहते ने हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है। नहीं मन सकते हार। पर थोड़े कोल ते कुछ भी नहीं, न शस्त्र न वस्त्र न किले न महल न धन न संपदा न सिंह न फौज। महाराज कहते हैं बार बार ए ना आखो कुछ नहीं है मेरे कोल, कुछ की है तो मेरे पातशाह दे बोल कलाम, पर्शियन दी कविता। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ठीक है मेरे कोल फौज नहीं, मेरे कोल किले नहीं, मेरे कोल धन संपदा नहीं, पर मेरे हृदय च खुदा दी याद है। जितने चिर तक वो मेरे हृदय च बैठा है मैं हार नहीं मन सकता, क्योंकि ये खुदा दी हार हो जाएगी, ये परमात्मा दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। तुसी इतना ही तस्लीम कर लो कि थोड़े 4 बच्चे मार दिते गए ने, शहीद कर दिते गए ने। इसका जवाब जो सतगुरु एहलकारां नूं देंदे ने लिखे हुए जफरनामे दे राहीं वक़्त दे हुक्मरान नूं देंदे ने, ये बोल भी बड़े कीमती ने। चाहा शुद्ध के चूं बच गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। की होया तुसी मेरे 4 बच्चे मार दिते, अजे वो पेचीदा सप मौजूद है जो पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। ऐसा क्यों मेरे पातशाह ने आख्या। उस जमाने च सिख नूं भुजंग कहण लग पे सन, सप कहण लग पे सन। सप नूं फारसी दे मार कहंदे ने। तो किधरे सिख लंघदा पिया होवे तो कहंदे सन ईमार मी रफती, ईमार मी आमद, ये सप जा रहा है, ये सप आ रहा है। तो उन्हां दे बोलां नूं सतगुर उन्हां दे सामने करदे ने, अजे वो पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। चाहा शुद्ध के चूं बच गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। चे मर्दी के अगर खामोशां को नहीं, के आतिश दा मारा फेरोजा को नहीं। ये कोई मर्दानगी ते नहीं है, ये कोई अकलमंदी ते नहीं है। 4 चिनगारियां नूं बुझा देना ते शोलियां नूं भड़का देना। 4 बच्चियां दी मौत, ऐ वक़्त दे हुक्मरानों, ये ते मैं बुझियां हुई 4 चिनगारियां ही समझदा। शोले ज्यादा भड़क उठे ने, ज्यादा भड़क उठे ने। जल जाएगा इस विच जुल्म, जल जाएगा इस विच तशद्दद, जल जाणगियां इस दे बेइंसाफियां। लेकिन हुण जो हाथ जोड़ के एहलकारां ने किया और उसका जो मेरे पातशाह ने जवाब दिता है वो काबिल शुनीद है, गौर नाल विचारण वाला है। कहंदे ने एहलकार कम से कम तुसी खुले शब्दां च यही मान लो कि साडे बच्चे मौत दे घाट उतार दिते गए ने। 4 बच्चे मौत दे घाट उतार दिते गए ने, इतना ही कह दो। इस नाल भी असी सुलह सफाई दे कदम अगे तोड़ सकते हैं। हुण जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल ने, उन्हां एहलकारां दे प्रति, वक़्त दे हुक्मरान दे प्रति बुलंद पाया ए बोल, जिस विच साहस दलेरी, सूरवीरता, दूरदृष्टि और फिर कवि दी कविता अपने रंग दे झलकदी पई है। पातशाह कहंदे ने संगे बदगो गर अगर, कासाए जरी शिकंद। दुष्ट मनुख अगर भारी भरखम पत्थर चुक के सोने दे प्याले नूं तोड़ना चाहे तो महाराज कहंदे ने मैं कबूल करदा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। सोने दा प्याला टूट जाएगा। संगे बदगो गर अगर, कासाए जरे शिकंद, कीमते संग ने फजायद वजर कम न शोद। पर बड़ी कीमती गल मेरे पातशाह कहंदे ने। ठीक है मैं तस्लीम करदा, एक दुष्ट मनुख वजनी पत्थर चुक के
सोने दे प्याले नूं तोड़ना चाहे प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। लेकिन टूट के भी सोने दे प्याले दी कीमत कोई घटनी नहीं और नट टूट के पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। इसनों धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी कहंदी है, कूड़ ने खुट्टे नानका ओढ़क सच रही। सतगुर दियां ओ कुर्बानियां, ओ बख्शिशां, ओ तामीरी रुचियां उसने अंजामकार ऐसे खालसे नूं जन्म दिता जो एक जीवदी जागदी कौम है, एक जीवदा जागदा देश दा निशान है। एक ऐसी कौम दा उदय होया जो देश दी रक्षा है, देश दी वाड़ है। एक ऐसे पंथ दी सिरजना हुई जिस नाल देश दी संस्कृति बची। और इसनों मेरे पातशाह ने नाम दिता खालसा। खालसा खालसा। सिर्फ संत संत होवे कायर हो जाता है, मुथाज होता है। सिर्फ सिपाही सिपाही होवे जालिम हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। लखां साधु संतां दे होंदे होया देश गुलाम हो गया क्योंकि कायर सन, कायर सन। मुट्ठी भर सिपाहियां ने देश नूं गुलाम कीता क्योंकि दुष्ट सन, जालिम सन। सिपाही सिर्फ सिपाही होवे दुष्ट हो जाता है, जालिम हो जाता है। ते संत सिर्फ संत पने च रवे कायर हो जाता है। विसाखी वाले दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही नूं संत नाल जोड़िया, संत नूं सिपाही नाल जोड़िया और नाम रखिया संत सिपाही। ये संत भी है, ये सिपाही भी है, पर इसनूं तखल्लुस दिता खालसा। खालसा। गुरु नानक दे 9 स्वरूपां ने संत नूं जन्म दिता। उसे ही संत नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बना दिता। संत सिपाही। सही मैने जो संत नहीं ओ सिपाही नहीं हो सकता, दुष्ट होवेगा, जालिम होवेगा, डरावेगा, धमकावेगा। पर जो संत ते है सिपाही नहीं, कायर होवेगा, बुज़दिल होवेगा। जो कायर है, बुज़दिल है, वो डरदा है। जो जालिम है, दुष्ट है, डरांदा है। ये दोवें अवगुण ऐसे ने कि परमात्मा दे विचकार दीवार खड़ी कर देंदे ने। साहिब कहंदे ने मैं उसकी तामीर कीती है जो खालसा है। तो खालसे तो मुराद ओ जो संत है, सिपाही है, सिपाही है, संत है। ये प्रभु नाल जुड़िया होया है, समाज नाल भी जुड़िया होया है और समाज दियां कुरीतियां ज़ुल्म ते तशद्दुद नूं रोकण लई ये सिपाही है। देश तो मिटण लई ये सिपाही है। पर प्रभु तो सदके होण लई ये संत है। प्रभु दा चिंतन करदा है, ये संत है। इस तरह दी साजना विसाखी वाले दिन होई जिसदा हुण 300 साला साजना दिवस बड़े शौक नाल, बड़े उत्साह नाल सारा देश गौरमेंट पद्धर ते भी, देश पद्धर ते भी, समाज पद्धर ते भी, धार्मिक पद्धर ते मना रहा है। मुबारकां मुबारकां। ये खालसा हमेशा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बख्शिश का पात्र बनिया रहे और ये खालसा हमेशा देश धर्म की तामीर लई अपनी कुर्बानी देंदा रहे।